Hello everyone. My name is Shams Lakhani. I am a founder and head groomer of Pet Pamperer Pet Salon, which is based in Mumbai, Andheri. As we know, what happened a couple of days back, a poor dog was bitten very harshly by a groomer at some multi-speciality, multi-servicing center in Thane. See, I couldn't see the whole video. It was very sad. It was very drastic. I couldn't see it. I couldn't see the whole video. Uh, this is something which surfaced on the social media, which came out, and everybody knew about it. There must have been so many incidents which hasn't actually came out. That's I can't stop thinking about that. Nevertheless, thanks to the police department, thanks to all the NGOs, all the rescue workers, who were very prompt to take action against those culprits. And I wish that they get the harshest punishment possible. And I hope that the dog is fine. I hope that the pet parents are okay now. There are few pointers that I want to put out regarding this. Um, I was actually making some points yesterday as to I just wanted to pass all my messages to everyone. Now this negligence or whatever you may call it happened. Why did it happen? Was it the negligence because of the owner of that particular facility? Yes, I think so. What is the credentials of the people running that place? Are they groomers? If they are not groomers, if they are not certified, qualified, experienced groomers, they shouldn't be grooming. What about the vets there? What were they doing? What about the manager of that facility? What about the supervisor of that facility? How can you leave a dog unsupervised with some random guys who call themselves groomers because they may have worked somewhere else before for a few months or maybe some years? Who is responsible? I think everyone is from that facility. I also want to convey a message to pet parents that when you select any service provider for your pets, be it groomers, be it trainers, be it vets, be it anyone from the pet industry, I request you to please check the credentials of those people. Are they trained? Are they qualified? Are they certified? How many years of experience are they having? Read the Google reviews. Ask other pet parents around in your area about that particular place. If they have been their client, ask them what is their experience or what they have heard about that place or what they have heard about those groomers working at that place. Please don't only try to save money. You have taken a pet. It is a responsibility of 15-16 years. You do want to provide the best possible care for your pet. I understand that. And everybody doesn't have, you know, too much money to spend on them. I understand them. But the only rates are not the criteria to select a grooming place. Ask vets, ask trainers if they know any good grooming salon, any good groomers. Ask them all this stuff. रिसर्च करो आप लोग. जस्ट बिकॉज कोई 100 रुपये में कर रहा है डिस्काउंट ग्रूमिंग, 100 रुपये में डिस्काउंट ग्रूमिंग कैसे परवड़ेगा किसी को भी? स्पेशली इफ समबडी इज रनिंग अ सलॉन, देर आर सो मेनी ओवरहेड्स टू पे. रेंट होता है, स्टाफ का सैलरी होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है. देर आर प्रोडक्ट्स दैट वी यूज विच आर वेरी एक्सपेंसिव बाय द वे. एक सीजर हम लोग की 8-10 हज़ार की आती है.
Most of the things that we use is imported, and with every consignment the prices go up. ये सारी चीज़ें नहीं पता होती आप लोगों को. Don't look for cheaper options, look for better options. मैं ये चीज़ कन्वे करना चाहूँगा पेट पेरेंट्स के साथ में कि प्लीज़ रिसर्च करिए आप लोग, सिर्फ पैसा बचाने के लिए या टाइम बचाने के लिए कि वो तो बहुत दूर है, वहाँ पे हम लोग कैसे जाएं. ये मत करो आप लोग. तीसरी चीज़ में, जो कॉरपोरेट्स हैं जो बहुत सारे ब्रांचेस खोल देते हैं, उनके लिए मेरा कुछ ये मैसेज है कि आप लोग ये समझिए, दिस इज़ अ टच टू टच सर्विस इंडस्ट्री. ये कोई इडली डोसा पिज़्ज़ा ये सब नहीं बेच रहे हो आप लोग कि एक ही रेसिपी या एक ही रॉ मटेरियल आपने सब जगह पे सप्लाई कर दिया तो हो गया. नो, दिस इज़ द केयर इंडस्ट्री. जैसे चाइल्ड केयर इंडस्ट्री होती है, ओल्ड पीपल केयर इंडस्ट्री होती है, वैसे पेट केयर इंडस्ट्री है. ये पेट केयर इंडस्ट्री में इफ यू वांट टू डू अ गुड जॉब, हायर प्रॉपर ग्रूमर्स, पे देम वेल, look after their well-being and let them do their job. Don't push them to do what you think is their job. उनका काम उनको करने तो आपको नहीं पता है. If you only want to make money, then this is not the industry for you, bro. ठीक है ना, आप कार वॉशिंग का कर लो, आप खाने पीने का कर लो, कोई भी केयर इंडस्ट्री में मत जाओ अगर आपको सिर्फ पैसे बनाने हैं तो. और जो प्रोफेशनल ग्रूमर्स हैं उनको भी मैं कुछ कहना चाहूंगा कि यू हैव टू डू द राइट थिंग. प्लीज फॉलो द राइट प्रैक्टिसेस. डोंट माइंड लूजिंग बिजनेस, बट डू द राइट थिंग. डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर एथिक्स, योर मॉरल्स और योर कंफर्ट जोन. जो अनकंफर्टेबल है मत करो. अगर अग्रेसिव डॉग्स नहीं कर सकते हो मत लो. अगर ओल्ड एज डॉग्स नहीं ले सकते हो मत लो. अगर पपीज नहीं ले सकते हो मत लो. ये हर एक का कंफर्ट जोन नहीं होता है. इसके लिए सालों की प्रैक्टिस लगती है, बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, बहुत सारा सीखना पड़ता है, प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होती है इसके लिए. आई एम सॉरी मेरा ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा होगा, बट आई डोंट माइंड. जिसको देखना है वो देखे, जिसको नहीं देखना है वो नहीं देखे. मैं मेरी दिल की बात यहाँ पर रख रहा हूँ बिकॉज आई बिलोंग टू अ पेट ग्रूमिंग इंडस्ट्री. और ऐसे इंसिडेंट्स की वजह से पेट ग्रूमिंग इंडस्ट्री, रादर पूरी पेट इंडस्ट्री बदनाम होती है. और फिर हम जैसे अच्छे लोगों को भी जज किया जाता है. इसलिए मैं ये सब चीजें बोल रहा हूं. आपके पास जो पेट प्रोफेशनल्स हैं, जो प्रोफेशनल ग्रूमर्स हैं, मैं उनको ये बोलूंगा कि आपके पास जो कंफर्ट जोन है आपका, उसमें आप काम करो. अगर वो कंफर्ट जोन में आप काम नहीं कर सकते हो लेकिन आपको करना है तो वो सीखो. बहुत सारे सीनियर ग्रूमर्स हैं इंडस्ट्री में जो आपको हेल्प करेंगे सीखने के लिए, आपको गाइड करेंगे. सीख लो पहले. जस्ट बिकॉज थोड़े से पैसे के लिए मत कॉम्प्रोमाइज करो किसी भी पेट की लाइफ. और मैं जनरल पब्लिक को भी मैं बोलूंगा कि आप लोग इतना जनरलाइज मत करो. हर एक पेट सलॉन, हर एक ग्रूमर बुरा नहीं होता. बहुत सारे ग्रूमिंग सलॉन्स हैं, बहुत सारे ग्रूमर्स हैं बॉम्बे में ही जिनको मैं जानता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं उनकी. वो लोगों ने लाखों रुपए लगाकर और पता नहीं कितने 100 सैकड़ों घंटे उन्होंने लगाए होंगे अपना ये स्किल सीखने के लिए, और अभी भी सीख रहे हैं. मैं खुद सीख रहा हूँ, मेरी वाइफ खुद सीख रही है. इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. लर्निंग नेवर स्टॉप्स. बहुत सारे ग्रूमर्स हैं यहाँ पर बॉम्बे में मैं जिनको जानता हूँ जो लगातार सीख रहे हैं. क्यों सीख रहे हैं? बिकॉज वी वॉन्ट टू प्रोवाइड बेटर केयर फॉर द पेट्स. जितना हम लोगों ने सीखा है उतना काफ़ी है जो हम लोग कर रहे हैं उसके लिए. बट वी कीप लर्निंग बिकॉज वी वॉन्ट टू बी बेटर एंड वी वॉन्ट टू सर्व द पेट्स बेटर. सो आप लोग इस तरह से जनरलाइज मत करो कि एक ग्रूमिंग सलॉन ऐसा है तो सारे के सारे ऐसे होंगे. ऐसा नहीं है. एक आधे देयर आर, एक बास्केट में अच्छे एप्पल्स भी है, उसमें खराब एप्पल भी निकलता है कभी कभी, लेकिन सारे एप्पल्स खराब नहीं होते. सारे ग्रूमिंग सलॉन्स खराब नहीं है. और कुछ मेरा मैसेज उन लोगों के लिए जो अपने आप को एनिमल लवर बोलते हैं या उन्होंने काफ़ी सालों से डॉग्स पाल रखे हैं, तो उनको लगता है कि यार चलो ठीक है पैसे है तो हम लोग पेट सलॉन कर लेते हैं. भाई, एनिमल लवर होना, एक पेट पेरेंट होना और एक प्रोफेशनल होना, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है. एनिमल लवर होना प्री रिक्विजिट है, वो कंपैशन आपके अंदर होना चाहिए, बट उतना ही काफ़ी नहीं है.
अगर आपको ये इंडस्ट्री में आना है तो मैं यही बोलूँगा कि आप पहले सीख लो, कोई अच्छे स्कूल से, अच्छे सैलून से कोई सीख लो, जो सालों से कर रहा है ये, उसके पास सीख लो। बहुत सारे स्कूल्स हैं, मेरी खुद की स्कूल है, हम लोग खुद सिखाते हैं। मेरे अलावा और भी है, बहुत सारे लोग हैं, बेंगलोर में है, बॉम्बे में भी है, जो ट्रेंड है, सिखाने के लिए भी ट्रेंड है। मुझे मेरे टीचर्स ने मुझे ये चीज़ को बोला था कि अब मैं सिखा सकता हूँ। दैट वॉज आफ्टर 4-5 years ऑफ कंटिन्यूस प्रोफेशनल जॉब दैट आई हैड डन। 5 साल के बाद में मैंने सिखाना शुरू किया था। 5 साल तक मैं सिर्फ कर रहा था, 5 साल तक मैंने किया है, उसके बाद में मैंने सिखाना स्टार्ट किया है। अगर आप लोगों को करना है पेट सैलून तो मैं ये बोलूँगा कि आप कर लो। फर्स्ट लर्न एंड देन थिंक अबाउट अर्निंग। ऐसे नहीं होता है। आपको लगता है कि भाई एनिमल लवर है, हमने 20 साल से हम कुत्ते पाल रहे हैं तो हम लोग कर सकते हैं सैलून। भाई ऐसा नहीं होता है। आपने 20 साल से कितने कुत्ते पाले? 50 कुत्ते पाले हैं आपने। मैं 12 साल से ग्रूमिंग कर रहा हूँ, मैंने हज़ारों कुत्ते देखे हैं। रोज़ के 10-12 कुत्ते देखता हूँ मैं, अलग अलग। तो प्रोफेशनल होना अलग बात है और एनिमल लवर होना अलग बात है और पेट ओनर होना अलग बात है भाई। ये प्री रिक्विजिट है कि आपको एनिमल लवर होना है। आपके अंदर वो कंपैशन, आपके अंदर वो पेशेंस होना जरूरी है इफ़ यू वांट टू बिकम अ डॉग ग्रूमर और इफ़ यू वांट टू रन अ पेट ग्रूमिंग बिजनेस। बट उतना काफ़ी नहीं है। और जो फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं, अब मैं क्या ही बोलूँ, मैं प्लीज स्टॉप मैनिपुलेटिंग इनोसेंट नाइफ पेट ओनर्स। ठीक है, उनका गलत फायदा मत उठाओ और हायर वेल ट्रेन्ड स्टाफ और गेट देम ट्रेन्ड। कोई कुछ भी बोलेगा मैं डॉग ग्रूमर हूं, आपने रख लिया काम पे, उसका क्या चेक किया आपने? अगला पिछला कुछ चेक किया आपने? कोई बोलेगा आपको कि मैं इस फलाने सैलून में काम करता था, वो सैलून की ओनर से आपने फ़ोन करके बात करी, पूछा आपने कि ये काम करता था यहाँ पे या नहीं करता था, और अगर करता था तो आपने क्यों निकाला या क्यों छोड़ के गया? ये सोच समझ के आप लोग हायर करो स्टाफ। और अगर ट्रेन स्टाफ नहीं मिल रहे तो आप स्टाफ हायर करके उनको ट्रेन करा सकते हो मेरे भाई। ऐसा मत करो। डोंट ट्राई टू गेट इनटू शॉर्टकट्स। और बहुत सारे ग्रूमर्स भी है जिनके मल्टीपल ब्रांचेस हैं। नथिंग रॉन्ग इन हैविंग मल्टीपल ब्रांचेस। सबको अपना अपना बिजनेस एक्सपांड करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। मैं खुद चाहता हूं करूं, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई बिजनेस मॉडल अभी तक आया नहीं है कि मैं मेरी 4 ब्रांच 5 ब्रांच करके मैं वही सेम क्वालिटी दे पाऊं। अभी तक तो नहीं आया, मेरे को तो नहीं आया है। और मैं 12 साल से ये इंडस्ट्री में हूं। मैंने कोशिश करी थी, एक और ब्रांच मैंने किया था, मेरी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी, मैंने बंद कर दिया। वो मेरे से नहीं हो पाया। जो ग्रूमर्स हैं, सर्टिफाइड क्वालिफाइड एक्सपीरियंस ग्रूमर्स हैं, जिनके बहुत सारे ब्रांचेस हैं, मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोग कैसे करते हो ये चीज़, और आप क्वालिटी कैसे आप लोग मैनेज करते हो? सेम क्वालिटी आप कैसे दे सकते हो इतने सारे ब्रांचेस के साथ में? क्योंकि आप एक बार में आप एक ही जगह पे हो सकते हो, सारी जगह पे तो हो नहीं सकते आप। तो मेरे को बताओ वो क्या मॉडल है? मेरे को अभी तक नहीं मिला है। मेरे को अभी तक वो मॉडल नहीं मिला है जहाँ पर मैं सेम क्वालिटी दे पाऊँ। जैसी क्वालिटी मैं यहाँ पर मेरी मदर ब्रांच में दे रहा हूँ, वैसे ही मैं मेरी बेबी ब्रांच में दूँ। आप मुझे बताओ ये चीज़। यार देखो क्या है ना, ये एक्सपांशन के चक्कर में और ये फ्रेंचाइजी के चक्कर में ये सब करते हैं पैसे कमाने के लिए। हर एक को पैसे कमाने हैं। किसी कोई ऐसा नहीं है जो बोलेगा नहीं मेरे को पैसे नहीं कमाने। मेरे को भी कमाने हैं पैसे भाई, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? यू आर इन केयर इंडस्ट्री। अल्टीमेट क्लाइंट, अल्टीमेट सर्विस जो हमारा लेता है वो एक डॉग है, एक कैट है। हम उनकी रोजी रोटी खाते हैं। वी हैव टू बी ऑनेस्ट विद देम। डॉग्स के साथ में आप काम करते हो, आप डॉग से क्या सीखते हो यार? लॉयल्टी, ऑनेस्टी, कितनी सारी क्वालिटीज हैं जो मैंने सीखी है। हम उनके साथ में काम करके उनसे कुछ सीखते नहीं है क्या? एट व्हाट कॉस्ट डू वी वांट टू एक्सपैंड? एट व्हाट कॉस्ट डू वी वांट टू मेक मोर मनी?
इफ यू वांट टू मेक मनी, आप स्टॉक मार्केट में जाओ, रियल एस्टेट में जाओ, डू समथिंग जहां पे इमोशन से कोई लेना देना नहीं है भाई। पेट केयर इंडस्ट्री में या चाइल्ड केयर इंडस्ट्री में, आई एम नॉट फ्रॉम चाइल्ड केयर इंडस्ट्री बट इट इज सिमिलर आई थिंक, ये जगह सिर्फ पैसे बनाने के लिए नहीं है। यहां पे वी हैव टू सर्व द पेट्स एंड वी हैव टू सर्व द पेट पेरेंट्स, वी हैव टू गाइड देम वेल, ताकि बेटर पेट पेरेंट्स हों। आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले जैसे पेट पेरेंट्स थे, आज वैसे पेट पेरेंट्स नहीं है। दे केयर अबाउट देयर पेट्स, they spend so much money on their pets. We have to be honest with them, we have to be honest with the dogs, we have to be honest with the cats, we have to be honest with the pet parents. सब्र करो, मेहनत करो, सबका टाइम आएगा। थैंक यू।